doing some hands-on exercise. So will be going to create a login page and sign-up pages so that we all can understand more about Kotlin. So I hand over to Anurag. Thank you, ma'am. So I am Anurag Vishwakarma. I am the Android developer. So let's start Android trip. So first we have to download Java JDK file to run the Android Studio. So first we download the Android JDK file. We will download the latest version of downloading. So our SDK is installed. So now we will execute it and install the JDK. So click next, and where we have to install the JDK file, select if you want to change the path of the JDK development kit, so you can change here. Otherwise, you will just click next and the process will complete. So it is done. So just we will go into where we have put it into this PC, and in this PC we will look into the Windows C, and where we have installed program file, and we will go to Java folder, and it is the latest version JDK 17.0.1. So just go into bin, just copy the path from here. So we have to set the variables path, environment variable path into the, so to run the Java file, just we will search into the window environment variables, set the path, just click on environment variable path, and here you can see that in system variable the path is available. So in just you select path and just click edit, and you have to select now new, and the path you have copied from JDK, just paste it here and make it up, move up, and click OK. So our path is JDK is installed. So just to check it, we will run a command prompt to check where Java file is installed or not. So just write Java version, and here we can see that Java version is installed. So now come up with Android Studio. Just go on Chrome and open Android Studio. Download. Just click, say the second link, download Android Studio and SDK tools. And here you can see that download
Android Studio, it is 914 MB. So you can download it from here. Just clicking it download and selecting the terms and condition. Just click it into the tick box and download. So here I will just pause because I have already downloaded it. Yes, I will go on that. So here you can see that this is my Android Studio downloaded. So just click on it. So now you can see the dialog box appear. Just click yes. And you have to select now next to continue. Just leave as it is and just click next. And where you have to install Android Studio, if you want to change the path of Android Studio to install, you can change it or as leave as it is. Just leave as it is and install. So it is installing. Just wait for a few minutes. So it is completed. Just click next and finish. So here you can see that Android Studio is starting. So here you can see that the Android Studio IDE is installed, and it will give the tip of the day as you install new Android Studio. So just close, and now here we will make a small project. So if you want to choose a Hello World app or a calculator app, so I am choosing the calculator app so you can understand easily. So from file, you just select new and new project and go. So here you can see the dialog box appear. So you just click empty activity because we are making a default app. So you cannot done with this. So you just click on empty active and click next. So here you want to set the name of the application. So here my app will be my application, and I'm doing my code with the Kotlin language. So I am just selecting Kotlin, and here you can select the SDK path. So here I'm just leaving as it is. Just click finish. So it is building. You can see here. So we will be making an calculator app. It will take some time for Gradle building. So just wait for a few minutes.
तो ग्रेडर बिल्ड हो चुका है, तो अब अपन ऐप की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पर ऐप बिल्डिंग का ऐप मतलब ऐप के अंदर जावा फाइल बनती है। इसके अंदर आपको पैकेज के अंदर मेन एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें आपने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करी थी, वो उसकी मेन एक्टिविटी बनती है। और यहाँ पर आपको रिसोर्स फाइल रहती है, जिसमें ड्रॉएबल में जितनी भी हम इमेजेस यूज करना चाहते हैं अपने ऐप में, वो सब ड्रॉएबल में रहेंगी। और लेआउट जो भी हम फ्रंट एंड देखना चाहते हैं, फ्रंट एंड यहाँ पे हम लोग डिजाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज रहेंगी जो कलर्स की रहेंगी, जो कलर आपको फॉन्ट को देने हैं वो भी सब इसी में रहेंगी। और इसमें स्ट्रिंग्स जो अपन सेव कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स जो आपको सेव करनी है, जो बार बार यूज करते हैं, तो आप उसको सेव कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आप अभी स्टार्ट करते हैं, एक कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं हम लोग। जैसे आप देख रहे हैं, तो हम लोगों को स्प्लिट स्क्रीन करके we will create XML file now। तो हम लोग बेसिकली हम लोग वर्क करेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट से, हम लोग वर्क नहीं करेंगे, हम वर्क करेंगे रिलेटिव लेआउट से। हम लोग दो प्रकार से दो लेआउट यूज कर सकते हैं, लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट। तो मैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट से वर्क करूंगा आज इसमें। तो इस ऐप में हम लोग कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ऊपर हम लोग हेडिंग देंगे। टेक्स्ट व्यू बीच में रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा कैलकुलेटर। तो हम कैलकुलेटर यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर कुछ कमांड्स रहते हैं जो बहुत जरूरत रहते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड विड्थ, लेआउट विड्थ, जहाँ पर आपको मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। मैच पेरेंट मतलब कि आप इस स्क्रीन का पूरा माना जाता है मैच पेरेंट। रैप कंटेंट मतलब कि जितना आपका वर्ड ऑक्यूपाई करेगा उस साइज को, उसको रैप कंटेंट कहा जाता है। तो वहां पर, और उसके बाद इसमें हाइट भी अगर रैप कंटेंट के हिसाब से है, तो आपका जो साइज है टेक्स्ट का उस हिसाब से रहता है। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग टेक्स्ट को हटाकर यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेटर। जिसमें हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट साइज भी कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट साइज यहाँ पर मैं यूज करूंगा मैच पेरेंट। और यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट अलाइन करूंगा जो कि सेंटर में रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरा कैलकुलेटर का जो हेडिंग है वो बीच में रहे। और इसको अगर मुझे स्टाइल करना है, टेक्स्ट को अगर स्टाइल करना है, जैसे कि बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, तो उसके लिए भी एक टेक्स्ट स्टाइल करके एक रहता है, जिसमें आपको टेक्स्ट स्टाइल आएगा। इसमें आपको हिंट देता है आईडीई। तो आपको जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल आएगा और आपको एंटर दबाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आधा कोड लिखा जाएगा। इसके बाद आपको अगर बोल्ड करना है इसको, तो आप इसे यहाँ पे बोल्ड करते जाएंगे और आप साइड में देखते रहेंगे कि आपका चेंजेस हो रहा है या नहीं। अगर आपको बोल्ड के साथ इटैलिक करना है, तो आपको जस्ट ये करके इटैलिक करना पड़ेगा, तो वो इटैलिक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। और साइज में हम लोग हमेशा एसपी लगाएंगे, 32 एसपी। सो यहाँ अब हम लोग यहाँ पे दो एंट्रीज के लिए दो बॉक्स बनाएंगे, जो कि एंड्रॉयड में टेक्स्ट व्यू रहता है, एडिट टेक्स्ट रहता है, बटन रहती है। तो हम लोग यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करके बनाएंगे। इसकी विड्थ रहेगी मैच पेरेंट, और जो हाइट रहेगी वो रैप कंटेंट रहेगी। यहाँ पर हम लोगों को रिलेटिव लेआउट में हर टेक्स्ट, हर व्यू की एक आईडी बनानी पड़ती है, जहाँ पे जिसके नीचे अगर
अलाइन करना है तो वहां पे आईडी के द्वारा अपन उसको इजीली अलाइन कर सकते हैं, इसलिए हमको वहां पे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेक्स्ट हेडिंग। मैंने टेक्स्ट इसलिए लिखा, टीएक्सटी इसलिए लिखा क्योंकि ये टेक्स्ट का मुझे पता चलता रहे कि टीएक्सटी टेक्स्ट व्यू है ये। और मैं एडिट टेक्स्ट में भी एक आईडी दूंगा, जहां पर मैं आईडी दूंगा ईटी करके, ईटी फर्स्ट नंबर। यहाँ पे बैकग्राउंड में दे दूंगा ब्लैक, और इसका साइज मैं बढ़ा सकता हूँ। एडिट टेक्स्ट में जैसे आपने देखा हो कि ईमेल टेक्स्ट है, और ईमेल जैसे लॉगिन पेज रहता है उसमें आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगते हैं, तो ईमेल के लिए आपको एक हिंट आती है कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जब आप ईमेल डालते हो तो वो जो ईमेल ये लिखा हिंट लिखी रहती है वो अपने आप डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग हिंट सेट करेंगे। मैंने बिलो इसलिए करी क्योंकि मुझे इस कैलकुलेटर हेडिंग जो है वो एडिट टेक्स्ट मुझे इसके नीचे चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मार्जिन अगर मुझे ऊपर से चाहिए तो मार्जिन टॉप रहता है, अगर मार्जिन मुझे नीचे से चाहिए तो मार्जिन बॉटम रहेगा। मार्जिन अगर मुझे लेफ्ट से चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट करके रहेगा, मार्जिन लेफ्ट राइट रहेगा तो वो मार्जिन राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हॉरिजेंटली में मार्जिन सेट करनी है वो उसका भी कोड इसमें है, और मार्जिन अगर वर्टिकल में करनी है तो वो भी है। तो यहाँ पर हम मार्जिन टॉप करेंगे 40 डीपी। डीपी इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिफॉल्ट पिक्सल रहता है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट का साइज हिंट जो अभी हमने दी है उसका हिंट का अपन कलर सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिब्बा है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो उसको उसका हाइट थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग इसको पैडिंग करेंगे। इसमें पैडिंग करके रहता है जो आपके जो भी कुछ बनाया है उसका वेट बढ़ा देता है। वेट मतलब कि उसकी चौड़ाई बढ़ा देता है। एंटर फर्स्ट नंबर। मार्जिन जो है वो मार्जिन अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं तो यह चारों जगह से 10 10 करके मार्जिन दे देगा। मार्जिन का ये मतलब अगर हम मार्जिन आप टॉप लेते हैं तो टॉप टॉप करेगा अकेली, मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट करेगा। अब हम लोगों को एक एक बॉक्स और चाहिए जिसमें कि यूजर दूसरा नंबर डाले, तो हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि अभी तो डिब्बा बना नहीं है, बट जस्ट
बन जाएगा अभी। यहाँ पर हम लोगों को हर हर व्यू की एक अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो बिलो किया है हम लोगों ने, तो हम इसको जस्ट बिलो कर देंगे अपने जो ऊपर जो एडिट टेक्स्ट का जो बॉक्स बनाया हुआ है उसके नीचे कर देंगे, तो ये जस्ट आ जाएगा। इसके बाद जो हिंट जो है हम जस्ट उसको सेकंड नंबर कर देंगे, तो यूजर इजिली यहाँ पर हिंट देख के यहाँ पर एंट्री कर सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे 4 बटन्स बनाएंगे जिसमें ऐड रहेगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा और डिवाइड रहेगा। बटन, इसके बाद मैच पेरेंट, अगर आपको पूरा मैच पेरेंट चाहिए, इसके बाद रैप कंटेंट जितना आप लिखना चाहते हो। इसके बाद बटन में आप जस्ट टेक्स्ट करके टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आईडी बनाएंगे इस बटन की, जो कि मैं स्टार्ट करता हूँ BTN ऐड। इसको मैं नीचे लाता हूँ क्योंकि एडिट टेक्स्ट अपन ने सेकंड बनाया हुआ है। एंड्रॉइड स्टूडियो की एक खासियत है, वो खुद बता देता कि भाई तुम्हें यहाँ यही चीज यूज करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, और हम लोग चाहते हैं कि ये बटन जितनी बड़ी दिख रही है साइज में, लंबाई में, उसको भी वहां से छोटा करते हैं। लेंथ इसकी ज्यादा दिख रही है, जस्ट अब हम सब्ट्रैक्ट के लिए भी एक बटन बनाएंगे। अब देख रहे हैं कि आईडी पे एरर आ रहा है, तो जस्ट हम लोग नाम उसका दूसरा रख देंगे सब्ट्रैक्ट, और हमको टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, और इसको हम बस बिलो कर देंगे अपनी जो बटन आपने बनाई है अभी ऐड। तो हम लोगों को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के बटन भी चाहिए। तो अभी हम लोग एडिट एक एडिट टेक्स्ट करके बनाएंगे जहां पे हम लोगों को टोटल दिखाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग मार्जिन करेंगे कि थोड़ा नीचे दिखे, और इसको हम मार्जिन साइड से भी कर देते थोड़ा बीच में आ जाए। तो जो भी नंबर हम देंगे फर्स्ट और सेकंड, तो ऐड क्लिक करने पे यहाँ पर टोटल दिखा जाएगा। इसकी भी हम लोग आईडी दे देंगे ताकि इसको हम मेन एक्टिविटी में यूज कर सकें।
तो हम लोगों का XML का काम हो चुका है। जस्ट अब हम लोग मेन एक्टिविटी में जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन एक्टिविटी जो है जिसके अंदर ऑन क्रिएट फंक्शन रहता है, यहाँ से ही जब आप ऐप चालू करते हैं तो वो ऑन क्रिएट फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ये जो सेट कंटेंट व्यू है, यहाँ पर हम उस लेआउट को कॉल कर रहे हैं जो अपन ने लेआउट जो बनाया हुआ है एक्टिविटी मेन XML करके। वो जैसे ही ऑन क्रिएट होगा तो यहाँ पर लेआउट ये बन जाएगा, खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉटलिन में अगर हम लोग कोड कर रहे हैं तो हम लोगों को वेरिएबल यहाँ पर लेट इनिट करके करने पड़ेंगे, जो हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। तो एडिट टेक्स्ट 1, इसके बाद एडिट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट, इसके बाद अब हम लोगों ने वेरिएबल अभी इनिशियलाइज करेंगे। अब ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर हम लोग इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, जिसमें कि हम एडिट टेक्स्ट 1 में हम लोग जो हमने XML में जो आईडी बनाई हुई है, हम वहां जो एंट्रीज करते हैं वो यहाँ पर कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसके फाइंड व्यू बाय आईडी करके जो फंक्शन रहता है उसमें हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id, जिसमें हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट जो फर्स्ट नंबर था उसका नाम सेट करा था ET फर्स्ट नम। तो यहाँ पे जस्ट हम इसको कर देंगे। इसके बाद जो एडिट टेक्स्ट जो मैंने सेकंड वेरिएबल लिया है, मैं उसमें इनिशियलाइज कर दूंगा id.et सेकंड नंबर, जो एडिट टेक्स्ट मैंने सेकंड लिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद मैं बटन को भी इनिशियलाइज करूंगा यहाँ पर, ताकि मैं बटन को क्लिक करूं तो मेरा काम हो जाए। इसलिए हम लोग बटन्स को भी का वेरिएबल्स भी यहाँ पर ले लेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट, इस टाइप का व्यू जो आपने लिया है, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, बटन, जो कुछ भी लिया आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि ये वेरिएबल जो आप बना रहे हो वो जिसकी जो आईडी आएगी वो एडिट टेक्स्ट तरह की रहेगी, बटन तरह की रहेगी। तो जस्ट यहाँ पे हम टोटल को भी इनिशियलाइज कर देंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी RID डॉट PT टोटल। इसके बाद हम ऐड की बटन को भी इनिशियलाइज कर देंगे। ऐड जो आपने नाम XML में सेट किया है, बस r.id डॉट यहाँ पर डालना है, जिससे वो आईडी वो कनेक्ट हो जाए ये वेरिएबल। अब हम लोगों ने यहाँ पर पूरे जो व्यूज बनाए थे वहां पर इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब हम लोग जस्ट उसका बैकएंड डालेंगे कि इसको करने से कुछ प्रोसेस जो करना चाहते हैं हम लोग वो करें। तो एडिट टेक्स्ट
वन में हम लोग जो वेरिएबल यूजर इनपुट करेगा तो हमें वो स्ट्रिंग वहां से चाहिए, तो हम जस्ट एडिट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल ए, और यहाँ पर करेंगे जस्ट एडिट टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, जो कि इस आईडी, जो आईडी हमने यहाँ पर सेट करी हुई है, जो भी एंट्री यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पर स्ट्रिंग के टाइप में आपको मिल जाएगी। और कॉटलन में हम वेर और वेल यूज करते हैं, तो मैंने वेर यूज किया है क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा। और मैं सेकंड वेरिएबल के लिए यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, हमें यहाँ सेकंड एडिट व्यू से स्ट्रिंग चाहिए। सो नाउ यू देख रहे हैं कि हम लोगों ने वहां से जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट करी है वो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दो बटन बनाई थी जो ऐड और सब्ट्रैक्ट की है, तो यहाँ पर हम लोगों को में फंक्शनैलिटी देते हैं कि ऐड की बटन क्लिक करने पर वो हमको टोटल में आउटपुट दिखा दे। तो ऐड एक बटन है, तो वहां पर हम सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर हम अब जैसे ही कोई ऐड बटन को क्लिक करेगा तो यहाँ से हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल टोटल, वेरिएबल सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि ऐड क्लिक करने पे हम लोग जो टोटल का जो हमने एडिट टेक्स्ट बनाया था वहां पर हम लोगों को उस टेक्स्ट को सेट करना है, जो हमें रिजल्ट यहाँ से मिलेगा हम वहां पर सेट करेंगे उसको। जस्ट हम वहां पे टोटल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोगों को जो भी वैल्यू वहां पर सेट करनी है हमको टोटल के एडिट टेक्स्ट में, वहां पर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेट टेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद जस्ट ऐसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट के लिए बना देंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर भी हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे c इक्वल टू a माइनस बी, जो यहाँ से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से टोटल डॉट टेक्स्ट c कर देंगे। So I think you are getting all board. So
we will start the session after 1 or 2 days. So now we will finishing it up. So we will do the next part in next meeting. So yes, Anurag has very beautifully explained about UI of the calculator app, which he was making for explaining us. And we will continue the half part, the later section of this app in the next session, which is going to be after 2-3 days, Android Study Jam session third. And I think so. That's all for today, and I hope you all will try to make some beautiful UIs using Android, and we would love if you will be sharing, um, if you will be going to make some these handful exercises and you will share to us, we will be loving it. And I think so for today, we are just wrapping it up. If you are having any query related to Android study jams, then you can please let us know. Yes, so I think so. We should wrap, and thank you to all of you for joining. We will see you in the next session. Thank you.